اسی طرح ساری زندگی سیکھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, سو وی آر ان لرننگ پروسیس, ساری لائف ہم سیکھتے ہیں. سو دیر از نو اینی کمپٹیشن, کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, کوئی مقابلے بازی نہیں ہے. سو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے ہم اگلے صلیبی کلمے کے لیے ہمارے درمیان ہماری بہن نسرین ہے, نسرین حیات. باجی نسرین کو خدا کے کلام کو آپ کی زوردار تالیوں میں دعوت دیں گے. اور تیسرا کلمہ جو یسوع مسیح کے منہ سے نکلا وہ باجی سے سیکھتے ہوئے سنیں. تھینک یو. ہاللیلویا. مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں میری طرف سے آپ سب کو آج کی شام سلام ہو. وقت کو ضائع کیے بغیر ہم اپنے کلمے کی طرف بڑھیں گے. آج جو میرے ذمہ خداوند کی خدمت لگائی گئی, تیسرا کلمہ کلمہ محبت, یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب اس کی 25 آیت سے لے کر 27 آیت تک. اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم, کلوپاس کی بیوی, اور مریم مگدلینی کھڑی تھی. یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا, اے عورت, دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. پھر شاگرد نے کہا, دیکھ تیری ماں یہ ہے. اور اسی وقت وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. میرے عزیزو, آج جو کلام میں سے خدمت صلیبی 7 کلمات میں سے میرے ذمہ خداوند نے لگائی وہ کلمہ محبت ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بائبل کا مین مرکز جو ہے وہ محبت ہے. کیونکہ اگر خدا دنیا سے محبت نہ رکھتا تو وہ اپنا اکلوتا بیٹا کیوں بخشتا. جیسا کہ یوحنا رسول کی انجیل میں خداوند نے اس کے 3 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے, خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. میرے عزیزوں, خداوند نے جو کلام مقدس میں جو ہمارے لیے لکھا ہے, جب تک ہم محبت نہیں رکھتے میرے عزیزوں ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ جو انسان کسی کے لیے اپنے اندر محبت رکھتا ہے وہی اس کے لیے کچھ کر سکتا ہے. یہ خداوند کی عظیم محبت تھی میرے عزیزوں ہمارے لیے کہ اس نے ہمارے لیے صلیب پر اپنی جان دی. کیا اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ یہ چیز جان سکتے ہیں کہ کبھی کوئی محبت کے بغیر ہمارے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں. بلکہ جو رشتے, جو ناطے ہم سے بہت محبت کرتے ہیں صرف وہی ہمارے لیے کیا کرتے ہیں, دکھ اور تکلیف کو برداشت کرتے ہیں. اور دنیا میں ایسا کوئی رشتہ نہیں ہوتا یا کوئی انسان ایسا نہیں جو ہمارے لیے تکلیف برداشت کرے یا ہمارے لیے کچھ کر سکے. صرف جو کسی سے محبت رکھتا ہے وہی اس کے لیے کچھ کر سکتا ہے. میرے عزیزو, اگر خدا ہم سے محبت نہ رکھتا تو کیا وہ اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیتا؟ یہ اس کی محبت ہی تھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا صلیب پر بلیدان ہونے کے لیے پیش کر دیا. کیونکہ وہ دنیا سے محبت رکھتا تھا. اسے پتا تھا کہ جب تک وہ اپنے بے عیب برہ کو اور اپنے بیٹا کی قربانی نہ دے گا یہ دنیا نجات سے واقف نہیں ہو سکتی. میرے عزیزو, خداوند کی یہ عظیم محبت تھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اسی طرح یوحنا رسول کی انجیل اس کا پہلا خط, کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے, میں حوالے آپ کو دوں گی, آپ حوالے نوٹ کر لیجیے گا. لیکن اگر ہم حوالے نکال کر پڑھیں گے تو پھر میں اپنا ٹاپک جو ہے اس کو بیان نہیں کر سکوں گی, اس لیے میں حوالے کوٹ کروں گی. جس بھی بہن بھائی کو نوٹ کرنے ہو وہ کر سکتا ہے. یوحنا رسول کا پہلا خط اس کی 8 آیت, جس میں خداوند نے لکھا ہے, جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا. میرے عزیزو, اس آیت میں بھی ہم پولس رسول اپنے خط میں لکھتا ہے کہ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا. اگر ہمارے اندر محبت نہیں تو ہم کیسے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کو جانتے ہیں؟ خدا کو وہی لوگ جانتے ہیں جو اپنے اندر
मोहब्बत को रखते हैं। सिर्फ ये कह देना कि मैं खुदा को जानता हूँ, मैं उसके कलाम को जानता हूँ, और हमारे अंदर मोहब्बत नहीं, हम दिलों में इतनी अदावतें पाले हुए हैं, इतने दुश्मन हमने रखे हुए हैं, फलां से हमारी दुश्मनी है, फलां हमारा जो है उससे मैं मिलना पसंद नहीं करता, तो फिर खुदा का कलाम कहाँ है? जिस इंसान के अंदर खुदा की मोहब्बत और उसका कलाम है, मेरे अज़ीज़ों, उसका कोई भी दुश्मन नहीं है, क्योंकि वो अपने दुश्मनों को भी क्या करता है? दोस्त बनाता है, क्योंकि खुदा के अंदर मोहब्बत है। और खुदा ने हमें भी ये कहा है कि जो मुझ में है वो भी मोहब्बत रखे। अगर हम खुदावन में हैं तो मेरे अज़ीज़ों, हमें मोहब्बत रखनी है, और जो खुदा को नहीं जानता वो अपने अंदर मोहब्बत नहीं रखता। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, ग्रंथियों 3 बाब उसकी पहली आयत में भी अगर हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी ये लिखा है कि अगर मैं फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं। तो मेरे अज़ीज़ों, हम जितने भी बाइबल के हवाले मैं आपके सामने कोट करूंगी, ये सारे मोहब्बत से खाली नहीं है। अगर फिर ये सारी चीजें हमारे अंदर नहीं है तो फिर हम कौन सी मोहब्बत रखते हैं? मेरे सिर में जो खुदावंद ने कलमा लगाया है वो मोहब्बत का कलमा है, तो मैं इसलिए आपको जितने भी हवाले दूंगी वो सारे मोहब्बत से उनका ताल्लुक है। अगर पौलुस रसूल भी कुरिन्थस की कलीसिया को ये जो खत लिखते हैं, इसमें भी वो कहता है कि अगर मैं बहुत सी रूह कुदस की नेमतें मेरी जिंदगी में है, मैं बहुत अच्छा कलाम सुनाता हूँ, मैं बहुत अच्छी दुआ कर लेती हूँ, और रूह की बहुत सी बरकतें मेरे पास हैं, मैं गैर जुबानें बोलती हूँ, लेकिन अगर मैं मोहब्बत नहीं रखती तो ये सारी नेमतें क्या है? बेकार है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अगर ये सारी चीजें मेरे अंदर नहीं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूँ। जो सिर्फ एक शोर करने वाली चीज होती है, मैं वो हूँ। सिर्फ मैं शोर तो करता हूँ लेकिन मेरे अंदर कुछ भी नहीं। मैं अपने मोहल्लेदारों के साथ मोहब्बत नहीं रखता, मैं अपने पड़ोस के साथ मोहब्बत नहीं रखता, मैं अपनी कलीसिया के साथ मोहब्बत नहीं रखता, मैं अपने खादिम के साथ मोहब्बत नहीं रखता। तो अगर मैं कलाम की खिदमत करता हूँ, या मैं गैर जुबान बोलता हूँ, या मैं बहुत अच्छी प्रस्तिश कर लेती हूँ, तो मेरे अज़ीज़ों इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि खुदावन के कलाम में वाज़िह तौर पर लिखा है कि अगर हम मोहब्बत नहीं रखते तो हम कुछ भी नहीं, ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ है। मेरे अज़ीज़ों, हम सबको इस चीज की जरूरत है कि हम अपने ऊपर इस चीज को गौर और फिक्र आज इस कलमा की वसीला से करें कि क्या मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूँ, या मैं वाकई ही अपने अंदर मोहब्बत रखती हूँ। हम साल हर साल ये सलीबी 7 कलमात को सुनते हैं, और खुदा के खादमान जो इसको बयान करते हैं वो हमें बताते हैं कि ये सलीबी 7 कलमात की इबादत जो है ये दुख की इबादत नहीं। लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आज बड़ी मातम की इबादत है। नहीं मेरे अज़ीज़ों, आज की इबादत जो है ये निजात की इबादत है। एक्चुअल यीशु मसीह ने आज के दिन सलीब पर अपनी जान देकर निजात का शादियाना बजाया। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरे अज़ीज़ों, मैं अपने कलमे की तरफ आऊंगी। ये तो जो मुझे कलमा सौंपा गया है, मैंने उसके बारे में, मोहब्बत के बारे में बाइबल में से आपको बताया है। अब मैं अपने कलमे की तरफ आऊंगी कि जिस अंजील से हमने ये कलमा पढ़ा, यूहन्ना रसूल की अंजील, मेरे अज़ीज़ों, यूहन्ना को खुदा ने मोहब्बत का रसूल ही कहा है। खुदावंद ने ही उसको मोहब्बत का रसूल कहा है। और यहाँ पर मेरे अज़ीज़ों, हमने जो हवाला पढ़ा है उसमें हमने 3 मरियम का जिक्र पाया है जो यीशु मसीह की सलीब के पास खड़ी हुई थी, जिनमें मरियम मगदलीनी, मरियम क्लोपास की बीवी मरियम मगदलीनी, और मरियम, सॉरी मैं वो हवाला अपलोड नहीं करूंगी क्योंकि अगर मैं बाइबल खोलूंगी तो बहुत हम चले जाएंगे, लेकिन मरकस की इंजील उसका 16 बाब उसकी 9 आयत में इसका जिक्र है। अगर कोई घर में जाकर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, ये तीनों औरतें जो यीशु मसीह की सलीब के पास खड़ी थी, क्या ये खुदा यीशु मसीह से कोई गर्ज या कोई लालच रखती थी? नहीं मेरे अज़ीज़ों, बल्कि ये खुदा से क्या करती थी? मोहब्बत रखती थी, और बेइंतहा मोहब्बत रखती थी। जब खुदा यीशु मसीह रूए जमीन पर अपना सफर कर रहे थे तो उस वक्त भी ये औरतें जो थी खुदा यीशु मसीह के साथ साथ रहती थी। जहाँ भी यीशु मसीह कलाम की खिदमत अंजाम देता था, वहाँ बैठकर ये खुदा के कलाम को सुनती थी, उसके कदमों में बैठ जाती थी, क्योंकि ये खुदा से मोहब्बत रखती थी। और मेरे अज़ीज़ों, जब यीशु मसीह को सलीब दिया गया तो
उस वक्त भी ये औरतें जो थी ये यीशु की सलीब के पास मौजूद थी। इनमें से जो मरियम मगदलीनी थी, आप सब जानते हैं कि उसके अंदर बुरी रूहें थी जो उसको तंग करती थी, और यीशु मसीह ने उसको बुरी रूहों से आजाद किया था। तो वो ये जानती थी कि ये शख्स मुझे इससे रिहाई देने वाला है, ये शख्स इन बदअलवाज से मुझे आजाद करने वाला है, इसलिए वो यीशु से प्यार करती थी क्योंकि यीशु ने उसको निजात दी थी, इन बुरी रूहों से आजाद किया था, और वो यीशु से प्यार करती थी। और जब यीशु को सलीब दिया गया तो वो उस मोहब्बत से जो उसके दिल में थी कि इस शख्स ने मुझे क्या किया है, इन बंधनों से आजाद किया है, तो वो यीशु के पास खड़ी हुई थी, उसकी सलीब के पास खड़ी हुई क्या कर रही थी, रो रही थी। मेरे अजीजों, ये मोहब्बत ही थी जो उसे यीशु की सलीब के पास ले आई। क्या आज हम भी ऐसी यीशु से मोहब्बत रखते हैं कि हम उसकी सलीब के पास आते हैं? नहीं मेरे अजीजों, हमें इस चीज की गौर करना है। आज इस सलीबी कलमात से हमें ये सीखना है कि क्या हम भी यीशु की सलीब के पास आते हैं, क्या हम भी उसकी सलीब के आगे आके झुक जाते हैं और अपनी जो भी हमारी मनाचाहतें होती हैं वो यीशु के आगे पेश करते हैं। मेरे अजीजों, जुमेरात की शाम से लेकर आखिरी फसह तक यीशु मसीह ने जो आखिरी खाना अपने शागिर्दों के साथ खाया था, उसके बाद पूरी रात यीशु मसीह को अदालतों में रखा। और मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं कि तारीख में आज तक कभी रात के वक्त अदालतें नहीं खुलती, बल्कि जब मेरे यीशु मसीह को सलीब देना था तो उस वक्त रात के वक्त भी अदालतों को क्या किया था, खुला रखा था, और सारी रात मेरे मसीहा को क्या किया था, अदालतों में पेश किया और उसके ऊपर जुल्म और सितम ढाए। मेरे अजीजों, ये हमारे लिए उसके मुंह पर थूका गया, कोड़े मारे, और जुम्मे की सुबह 9 से लेकर 3 बजे तक मेरे यीशु मसीह को क्या किया, सलीब पर लटकाया गया। किस लिए? क्योंकि मेरी और आपकी रिहाई, मेरी और आपकी खलासी हो सके, मैं और आप गुनाहों से रिहाई पा सके, मैं और आप फिरदौस के मालिक बन सके मेरे अजीजों। और ये 6 घंटे का जो अदद था जिसमें यीशु मसीह को 6 घंटे सलीब पर लटकाया गया, मेरे अजीजों, ये 6 का अदद जो है ये शैतान का अदद है, और जो 7 का अदद है, जो 7वां घंटा है, ये कामियत का है मेरे अजीजों। जब यीशु मसीह ने 6 घंटे अज़ियत बर्दाश्त की और उसके बाद जो 7वां घंटा शुरू हुआ मेरे अजीजों, वो हमारी निजात का घंटा था, जिसमें हम सबने निजात पाई, हमने गुनाहों से कफारा पाया मेरे अजीजों। वकीलों की वजह से नहीं, बल्कि मेरी और आपकी मोहब्बत की वजह से सलीब पर लटका हुआ था। क्या वकील जो थे वो मेरे यस्सु से ज्यादा जोरावर थे? नहीं, बल्कि मेरा यस्सु उन कीलों पर भी गालिब आ सकता था, वो उन कीलों को भी हटाने की कुदरत रखता था। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे और आपके लिए यस्सु ने वो कील जो थे वो बर्दाश्त किए, अपने हाथों में ठुकवाए और सलीब पर वो दुख बर्दाश्त किया, ताकि हम सब इस दुख से रिहाई पाए और हम सब जो है वो इससे निजात पाने वाले हों। यीशु मसीह ने मेरे अजीजों किसी भी जगह पर अपनी माँ को माँ का लफ्ज नहीं कहा, बल्कि ए औरत कहकर मुखातिब किया, क्योंकि मेरे अजीजों यीशु मसीह जो था वो सिर्फ जमीनी नहीं था, बल्कि वो जानता था कि मैं आसमानी हूँ। इसलिए मेरे यीशु ने कहीं भी अपनी माँ को माँ कहकर नहीं पुकारा, बल्कि ए औरत कहकर बाइबल में पुकारा है। क्योंकि ये ए औरत का लफ्ज जो है ये फारसी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब है मोहतरम, काबिले इज्जत। जैसे आज के दौर में किसी को इज्जत से पुकारना हो तो उसको मैडम कहते हैं या मोहतरमा कहकर, जो मुस्लिम अक़वाम है उसमें ख़वातीन को मोहतरमा का लफ्ज दिया जाता है, और जो इंग्लिश में मैडम का लफ्ज जो है वो ऑनर के लिए यूज होता है। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह की माँ के लिए जो ए औरत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो इब्रानी जुबान में और फारसी जुबान में इसका मतलब काबिले इज्जत है, यानी ए इज्जतदार औरत। उसने इज्जत के लफ्ज से उसको पुकारा है अपनी माँ को। मेरे अजीजों, इस लफ्ज को आज के दौर में मेरे ख्याल में अच्छा नहीं समझा जाएगा। अगर हम किसी को ए औरत कहकर पुकारे तो वो बुरा मना जाएंगे कि ये मुझे ए औरत क्यों कह रहा है, मेरा नाम ले या बहन, या हम ये प्रेफर करते हैं कि मुझे बहन बेटी कहकर बुलाए। लेकिन बाइबल में ए औरत जो है ये वर्ड, इसका मतलब इज्जतदार और मोहतरम औरत है। अगर हम इसको पढ़ते हैं डिक्शनरी में तो ये इज्जतदार औरत के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा ए हमारे बाप कहते हैं दुआए रुबानी में, तो वहाँ भी हम खुदा यीशु मसीह को क्या कहते हैं, ए बाप कहकर पुकारते हैं, यानी कि ए काबिले इज्जत, ए मोहतबर बाप।
जो सबसे उत्तम है, उसके लिए हम क्या कहते हैं? ए लफ्ज यूज करते हैं, ए हमारे बाप। मेरे अजीजों, खुदा ने इसी तरह अपनी माँ को बड़ी इज्जत से मुखातिब किया। इससे पहला कलमा जो भाई ने सुनाया कि ए यस्सु जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, यहाँ भी डाकू ने यस्सु को ए यस्सु कहकर पुकारा। ये नहीं कहा कि यस्सु जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, बल्कि यहाँ भी ए का लफ्ज जो है वो यूज हुआ, क्योंकि ए का लफ्ज जो है वो काबिल इज्जत है और काबिल तज़ीम है, और मेरा यस्सु भी जो है वो काबिल इज्जत है। हालेलुया, जोरदार ताली बजाइए उस इज्जत और काबिल तज़ीम यस्सु के लिए। और इसी तरह मेरे अजीजों, ज़बूर की किताब उसका 20 बाब और उसकी 12 आयत में भी हम देखते हैं कि उसमें भी हमारे लिए एक हुक्म है, तो अपने माँ और अपने बाप की इज्जत करना। यहाँ पर भी मेरे अजीजों हमें माँ बाप की इज्जत का हुक्म दिया गया। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह भी जब सलीब पर अपने शागिर्द को अपनी माँ की जिम्मेदारी दे रहा था, तो ये उसका एक फर्ज था कि वो अपने जमीनी रिश्ते को भी निभा रहा था। वो अपने शागिर्द को कह रहा था कि आज से तू क्या करना, मेरी माँ का ख्याल रखना। मेरे अजीजों, इस रोए जमीन पर रहते हुए क्या हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं? क्या हम अपने माँ बाप को इतनी ऑनर देते हैं? मेरा मसीहा तो जब इतने कर्ब की हालत में था, इतने तकलीफ की, उसके हाथों से, उसकी पसलियों से खून जारी था, तो इस तकलीफ की हालत में भी वो अपनी माँ की मोहब्बत को नहीं भूला। वो उस वक्त भी अपनी माँ की फिक्र में था कि मेरे बाद मेरी माँ क्या करेगी, क्योंकि उसकी माँ सलीब के पास बैठी रो रही थी कि उसका बेटा जान करने की हालत में है। लेकिन बेटा वहाँ भी क्या करता है? अपनी माँ की जो जिम्मेदारी है वो एक शागिर्द को देता है। क्या आज हम अपने माँ बाप की जिम्मेदारी जो है उसको निभाते हैं? मेरे अजीजों, इन सलीबी कलमात से ये हमें सीखने को मिलता है कि महज यीशु के वो अल्फाज नहीं जो उसने सलीब पर कह दिए और साल हर साल हम इसको दोहराते हैं, नहीं, बल्कि इसको अपनी जिंदगी में रोजमर्रा में क्या करें? अप्लाई करें कि हम जो खुदा यीशु मसीह ने हमें सलीब पर दर्ज दिया, क्या हम अपनी जिंदगी में ऐसा करते हैं कि हम अपने माँ बाप को इज्जत देते हैं? मैं अपने यहीं पर अपने टॉपिक को खत्म करूंगी और मैं चाहते हुए एक ज़बूर 159 का एक ज़बूर है जो हमेशा मेरी जिंदगी को इस जो मुझे मिला है कलमा, इसके वसीला से हमेशा जो मुझे बड़ी तस्कीन देता है। लेकिन मेरे पास ज़बूर की वो सियालकोट कन्वेंशन की बुक नहीं थी, लेकिन मुझे जितना याद था मैंने वो ज़बूर लिखा है। इसमें ज़बूर में भी लिखता है, बोल शमाउन वाला लगे आए बोल दी, अखियां दा नील मरियम सूली तले डोल दी, बस दी ना गल रही हथा पे टोल दी, लाडले नु झोली च लेके हंजू पे पहुंच दी। मेरे अजीजों, यीशु मसीह की माँ जो थी उस वक्त बेबस थी जब उसका बेटा जान करने की हालत में था, और वो क्या कर रही थी? अपनी अखियों के जो आंसू थे आंखों के, उनको बेजारों कतार क्या कर रही थी? अपने बेटे की मोहब्बत में बहा रही थी। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि ये इलाही मंसूबा है कि उसके बेटे ने सलीब पर क्या करना है? बलिदान होना है। और ये उसकी मोहब्बत थी कि उसने कुर्बान होकर क्या किया? मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी बख्शी। मेरे अजीजों, खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से और इस कलमा के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और कलाम की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कदूस सबलफाज लश्करों के खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के खूबसूरत कलमा के लिए। खुदावंद, तूने कलमा मोहब्बत मेरे ज़िम्मे लगाया खुदावंद, क्योंकि तू खुद मोहब्बत है और तू चाहता है कि खुदावंद हम भी खुदावंद खुदा तेरे कलाम को अपनी जिंदगियों के अंदर मुजस्सम कर ले खुदावंद खुदा, और हम भी मोहब्बत का पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने वाले हो खुदावंद के खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। बाकी मानव वक्त को खुदावंद अगले कलमा जो पेश करने को और बहन या भाई अभी से खुदावंद मैं रूह कुदस के ताबे कर देती हूँ खुदावंद, तो उसके साथ होना, उसके लबों की खुदावंद खुदा तो तकदीस करना था कि जो कुछ बोले तेरे रूह कुदस की रहनुमाई और तेरे कलाम की कुदरत से बोले खुदावंद के खुदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ, तेरे बेटे चलाने मुकद्दस नाम से ये दुआ मांगते और बड़ी ईमान से पाती हूँ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आप खड़े होना चाहते हैं या बैठे हुए ठीक है?
अगर कोई खड़ा होना चाहता है तो हो सकता है। हम एक गीत गाएंगे, 3 स्लीपी कलमात जो है वो हमने सुने हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़े से, क्योंकि ये इबादत लंबी होती है, थोड़े एक्टिव हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। एक गीत गाएंगे और इसके बाद फिर हम चौथा कलमा जो है, जो सिल्वेस्टर हनूक हमारे दरमियान है, वो प्लीज रेडी रहे। और मैं ये फिर कहता चला जाऊं, अगले स्लीपी कलमात जितने लोगों ने पेश करने हैं, प्लीज वो वक्त का ख्याल रखें। 3 जो कलमात हैं, ये एक बंदे ने 2 बंदों का टाइम लिया है, ठीक है। पहला कलमा भी तकरीबन 20 मिनट का गया है, दूसरा कलमा 12 से 15 मिनट टाइम लिया गया है, और तीसरा कलमा भी तकरीबन 20 मिनट हो गया था। सो बाद में आने वाले लोग जो है प्लीज फोकस करें टाइम पर, टू द पॉइंट बातें करें। दैट्स वेरी गुड फॉर अस, क्योंकि मेरे ख्याल में बाहर लोग आना शुरू हो गए हैं, इसके बाद वो इबादत करेंगे। सो आइए क्वाइट से दरखास्त है कि वो अगर 3 अंतरे हैं तो प्लीज 2 गा लें। शाहिद भाई 2 अंतरे गा लें, 2 अंतरे गीत के 2 अंतरे गाएंगे, फिर हम उसी का कलाम का हिस्सा जारी रखेंगे। प्लीज तशरीफ रखिए। और सिलेस्टर भाई बेटा प्लीज